Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, everyone. Morning, Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Pritesh. Good morning, ma'am. Good morning, Shiv. बेटा ये शिवांकर गंगवार कौन है? Ma'am, Shri Shivankar. Ma'am, Shreya Shivankar. Okay. We have Yuvraj, your name. Spelling is wrong. Good morning, ma'am. Good morning, Adarsh. Okay. Fine. Pratyush, Samir. Just Samir Yadav, please open your camera for a minute. And Rishabh also. Okay. Fine. You can close, beta. Good morning, ma'am. Good morning, Bushra. How are you, beta? Ma'am, good. Very nice. Ma'am. Yes, beta. शायद कोई डिवाइस क्या समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप मनोजस? आप बोल रहे हो उसके बाद भी काफी देर तक मनोजस आवाज क्लियर नहीं है बेटा. मैम जब भी आप बोल रहे हैं मैम उसके बाद आवाज थोड़ी वियर्ड से कुछ गूंज रही है मैम जैसे ची ची करके. Yes, ma'am. इको हो रही है? यस Yes, ma'am. मैम ईगो भी Yes, थोड़ा सही ma'am. लग रहा है. वो तो अजीब सा लग रहा है. अभी भी हो रही है? नो मैम अब No. नहीं हो रही. अब से हो सकता है कुछ ग्लिच होगा या क्या है, ईश्वर जाने. चलिए, where were we? Ma'am, Indian monsoon. Right, Indian monsoon. We started reading, I believe, right? Okay, Yes, ma'am. fine. Just let me join. Fine. Can we have Samir Yadav reading? Yes, ma'am. You have The to. Indian monsoon. Yes. The Can- climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. The Beta, sailors एक who minute. yes, Uh, yes, ma'am. we have read about the jet streams now. Yes, ma'am. Okay, tell me anything in this that is not clear or understood. Ma'am, all is clear. Ma'am, can you explain jet stream again?
I think yesterday only I was doing that. Just a second. See, we all know jet streams. These are the westerly winds, right? Yes, ma'am. Now these winds, they are very high speed winds which blow in a particular area during summers and during winters. They change their positions in the month of December and in the month of June. Sorry, in the month of January and in the month of June, right? Okay, ma'am. Right. Now, what is the, I think yesterday when we were doing this map, no, that time only the class got over. Page 29. There are two maps given. Yes, ma'am. See, subtropical westerly jet stream. In the month of June, in the month of January, they are prominent in the northern part of the country. Asian continent देख लो या all over देख लो. All over देख लो. Yes, ma'am. राइट और अगर हम लोअर साइड में देखते हैं इक्वेटर के पास देखते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है इट इज मूविंग. ठीक है. और जो हमारी साउथ वेस्ट जो विंड्स हैं, ये जो हमारी विंड्स जो आ रही हैं इधर से क्या बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर से, ये जो एरोज दिख रहे हैं आपको सरफेस विंड्स जो चल रही हैं, व्हाट आर दीज सरफेस विंड्स? डू यू नो व्हाट आर दीज सरफेस विंड्स? Anybody in the class? Ma'am, northeasterly winds. And ma'am, southeasterly winds. These are the Southwest. these are the permanent winds that blow over these areas throughout the year. यही तो पढ़ाया था ना हमने, यही तो पढ़ा था हमने. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलिए, तो ये बता रहे हैं कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये बहुत हद तक हमारे कंट्री में जो विंड्स की जो डायरेक्शन है उसको अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जनवरी में इनका जो डायरेक्शन होता है वो अलग होता है और रीजन्स जहाँ पे ये फ्लो करती हैं. ठीक है. और आपका जून में इनका जो एरिया होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है. अगर आप देखो 4.3 फिगर जो है आपका, उसमें इन द मंथ ऑफ जून ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो जाती है. ये देखो आप, इनकी डायरेक्शन कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है. कैन यू सी प्रद्युम्न? Ma'am, but the jet stream Yes, going ma'am. to Australia is the same. बेटा वो तो, ये तो सरफेस विंड्स है ना, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर घूमती हैं. देखो इसकी जो जेट स्ट्रीम का जो एरिया है वो आपका 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जो है दीज कीप ऑन मूविंग. तो वो डायरेक्शन तो वही रहेगी, पर जो मंथ्स हैं उन मंथ्स में इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी डाइवर्टेड हो जाती है. आप ये देखो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी जो है आपके लोअर एरियाज जो है हमारे कंट्री के, स्पेशली द सब ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल रीजन है केरला वगैरह, केरला तमिलनाडु, उस एरिया में जो है ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है. कैन यू सी द डॉटेड एरोज विच आर गिवन? Yes, ma'am. ठीक है. तो Yes, ma'am. ये रिवर्सल हो जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सीजन. ठीक है. Okay, ma'am. Yes, तो हमने ma'am. Okay, ma'am. ये जेट स्ट्रीम्स जो है बहुत हद तक जो है इम्पैक्ट करती है कंट्री के क्लाइमेटिक कंडीशंस को. राइट प्रद्युम्न? Okay, ma'am. आप ये ऐसा समझ लो कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं दीज आर काइंड ऑफ विंड्स जो कि एक पर्टिकुलर लैटिट्यूडनल एरिया में जो है वो मूव करती हैं. दीज आर लाइक सरफेस विंड्स ओनली, मतलब एक जैसे हमने ईस्टर्ली दे रखा है, हमने वेस्टर्ली नाम दिया हुआ है, ये दीज आर द परमानेंट विंड्स दैट ब्लो. पर इनके साथ कुछ अलग अलग हवाएं भी चलती हैं जिनका की जो रीजन ऑफ मूवमेंट है वो स्पेसिफाइड है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही घूमती है, उसके आगे पीछे नहीं आती है. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलिए, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. हु वाज रीडिंग? Samir. हाँ समीर, बेटा रीड. The Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon.
They benefited from reversal of the wind system as they came by sailing ships as at the mercy of winds. The Arabs who had also came to India as traders named this seasonal reversal of the wind system monsoon. The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20° north and 20° south. To understand the mechanism of the monsoons, the following facts are important. The different heating and cooling of land and water creates low pressure on the landmass of India, while the seas around experience comparatively high pressure. The shift of the position of the intertropical convergence zone ITCZ is in summer over the Ganga plain. This is the equatorial through normally positions of about 5° north of the equator. It is also known as the monsoon through during the monsoon season. The pressure of the high pressure area east of Madagascar approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The instantly and position of the high pressure area affect the Indian monsoon. The Tibetan plateau gets instantly heated during summer, which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 kilometers above sea level. The movement of the westerly jet stream to the north of the Himalayas and the pressure of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer. Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoon. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical eastern Indian Ocean साउथ experience low पैसिफिक pressure. ओके ठीक है हाँ But in certain years, there is a reversal in the pressure condition and the Eastern Pacific has lower pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean. This periodic change in pressure condition is known as the Southern सदर्न ऑक्सीलेशन oscill और एसओ oscillation or SO. The difference in pressure over Tahiti Pacific Ocean 80 degrees south 149 degree west and Darwin in the northern Australia Indian Ocean 12 degree 30 south 131 degree east is computed to predict the intensity of the monsoon. If the pressure differences were negative, it would mean below average and late monsoon. Our features connected with our features तो connected with the ASO is the सदर्न ऑक्सीलेशन EI9 एल phenomena नीनो इट इज एल नीनो L okay, El Nino phenomena in which a warm ocean current that flows past the Peruvian पेरुवियन कोस्ट coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years. The changes in the pressure condition are connected to एल El नीनो बेटा Nino, एल hence नीनो El Nino, hence the phenomena is referred to एल as नीनो सदर्न ऑक्सीलेशंस El Nino, El Nino southern एल oxygen. नीनो हाँ ठीक है बेटा ये जो फैक्टर्स हैं ये आप लोगों को आई एम श्योर समझ नहीं आए होंगे बहुत अच्छे से ठीक है यस मैम। समझ नहीं आया तो Yes, आपको ma'am. बता रहे हैं सबसे पहले हम आपको ये जो आपका ये है इंडियन मॉनसून का फर्स्ट पैराग्राफ जो इन्होंने पढ़ा कि भाई जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे मॉनसून विंड से हमें ये पता है कि जो मॉनसून विंड्स हैं इनका रिवर्सल हो जाता है रिवर्सल कैसे हो जाता है पहले ये आपकी होती हैं साउथ वेस्ट मानसून्स ठीक है साउथ वेस्ट मानसून होती है और फिर जब इनकी डायरेक्शन रिवर्सल होती है तब ये आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाती है विंड्स जो होती है ठीक है ये रिवर्सल वाला पार्ट अरे एक मिनट रुको आई एम ड्राइंग एंड इट इज नॉट शोइंग ऑन द स्क्रीन जस्ट अ सेकेंड
इसको अगर हम ऐसे समझते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनिशियली इनकी जो मूवमेंट होती है इन विंड्स की, ये आपकी इस डायरेक्शन में होती है, यहाँ से होती है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये क्या हुआ, साउथ वेस्ट मॉनसून हो गए, हो गया ना, Yes, ma'am. राइट। Yes, ma'am. अब जब इसकी रिवर्सल होती है, जब रिवर्सल होती है, तब ये आपका डायरेक्शन चेंज करता है और ये यहां से जो है प्रोमिनेंट हो जाता है, ये यहां से इधर आता है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, क्योंकि ये और ये इस दोनों एरिया के बीच से है, निकल रही है, तो ये फिर ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हो जाते हैं, राइट। Yes, ma'am. This is what they mean by the reversal of the winds. Totally opposite direction में जो है ये flow करने लगती है. I think it is clear from this. Yes, ma'am. ठीक है. अब ये जो ये पैराग्राफ लिखा है इन्होंने, the sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. हमने आपको ये बताया था कि जब पानी में जब शिप्स सेल करती हैं, उनको बहुत हद तक जो विंड्स ब्लो करती हैं, सरफेस विंड्स जो होती हैं, दे इम्पैक्ट देम अ लॉट, उनके मूवमेंट को इजी बनाती हैं ये विंड्स जब ये ब्लो करती हैं, ठीक है। Ma'am, here we are talking about monsoon winds. Yes, we are talking about exclusively monsoon winds only. Okay, ma'am. ठीक है। तो जब अरब कहाँ पे हमें पता है, हमारे वेस्ट में है, ठीक है। Yes, ma'am. वहां से जब सेलर्स इंडिया में आते थे सेल करने के लिए, तो वो इन विंड्स के सहारे आते थे। इन विंड्स, ये विंड्स जो थी मॉनसून विंड्स जो है, ये बहुत सपोर्ट करती थी इनको, मूवमेंट को इजी कर देती थी। तो ये सबसे पहली बार ये इन लोगों ने डिस्कवर करा, इन्होंने बताया कि भाई ये जो रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल हो जाता है, इनको हम मॉनसून्स बोलते हैं। इन्होंने इनका नाम दिया कि भाई ये मॉनसून्स है, ठीक है। Yes, ma'am. अब ये जो मॉनसून विंड जो है, दीज आर एक्सपीरियंस्ड बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, ठीक है। ये अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझें, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये आपका 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम ये मान के चलें कि ये हमारे कंट्री की पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से ये लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, और बिटवीन 20 डिग्रीज, मतलब ये इतना समझ लो, यहाँ पे ये 20 डिग्री समझ लो इसको, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका 20 डिग्रीज है। तो ये कह रहे हैं ये वाली जो विंड्स हैं, दीज आर मोर प्रोमिनेंट इन दीज लैटिट्यूड्स, ठीक है, राइट। अब ट्रेड सी रूट के थ्रू ही होता था। Yes, ma'am. तो क्योंकि ट्रेड सी रूट के थ्रू होता था, इसीलिए जो अरब जो यहाँ से आते थे, उनको ये जब वो यहाँ से आके यहाँ से ट्रेड करते थे, तो उनको इन विंड्स ने बहुत सपोर्ट करा। तो दे वर द वंस हु डिस्कवर्ड कि मॉनसून विंड्स हैं क्या, इनको क्यों, मतलब इनको जो नाम मासूमी दिया, वो इसीलिए दिया, बिकॉज ऑफ द चेंज। किसने दिया नाम? बेटा अरब्स जो थे वो मॉनसून, अरेबिक्स जो थे, हाँ, वो इनको मॉनसून विंड्स कहते हैं। I think आप कोई नेम बता रही हैं। मासूमी, MA, मॉनसून का मतलब मासूमी होता है, ओके, ठीक है। चलिए, नाउ फर्स्ट फैक्टर दैट वर्क्स फॉर द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, वो है हमारा डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। हमें पता है कि लैंड एंड वाटर जो है अलग अलग तापमान पे हीटअप होते हैं। लैंड और वाटर कभी एक साथ एक जैसा हीटअप नहीं होते, ये एवरीबॉडी नोज। Yes, ma'am. Ma'am, land slowly नहीं, land fast हो जाता है मैम, और water slowly होता है, ठीक है। तो जब वाटर जब स्लोली होता है, तो इसकी वजह से क्या, जब वाटर और लैंड के हीटिंग जो वो है कैपेसिटी जो है, उसमें डिफरेंस की वजह से लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है ऑन द लैंड मास ऑफ द कंट्री। ये हम मॉनसून विंड्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडियन जो पार्ट है उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो जितने भी समुद्र हैं वहां पे
कंपैरेटिवली हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लैंड पे लो प्रेशर और सी में हाई प्रेशर। ठीक है, तो क्या होता है, विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो करती हैं, हाई से हमेशा लो एरियाज की तरफ जो है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हमेशा विंड्स ब्लो करती हैं। ठीक है, तो जब समुद्र में साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यस, जब समुद्र में जो है आपका टेम्परेचर वेरिएशन शुरू होता है और आपका सी में जो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ से विंड्स अपने आप ही जो है लैंड की तरफ डाइवर्ट होने लगती है, क्योंकि लैंड में उस समय लो प्रेशर क्रिएट हुआ होता है, राइट? यस मैम, यस मैम, ठीक है, ये वाला फैक्टर क्लियर हो गया? यस यस मैम, मैम, यस मैम, अब आप आ जाओ सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर जो है आपका ITCZ है, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल मतलब विद इन दी इक्वेटर मैम ओनली। ट्रॉपिकल, हाँ भाई, हिंदी ट्रॉपिकल, हाँ, ये जो आपका 0 डिग्री इक्वेटर है और ये जो 5 डिग्रीज आपका नॉर्थ और ये आपका 5 डिग्रीज जो है आपका साउथ में जो है, यहाँ पे वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो समर सीजन होता है हमारे कंट्री में, जब समर होता है तो गंगा प्लेन्स में जो है एक इक्वेटोरियल ट्रो जो है वो हो जाता है ऑन द 5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉनसून की जो विंड्स हैं वो अपने आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है, क्योंकि यहाँ पे उस समय हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ होता है। ठीक है, यस मैम, यस मैम, तो मैम हाई यही चीजें टाइट, जी बेटा, मैम दीज थिंग्स ओनली मेक टाइट्स। टाइड्स तो नहीं, पर हाँ ये विंड्स जो है, हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है ये। ये बेसिकली हम आपको जो बता रहे हैं, ये डाइवर्जन ऑफ दी विंड्स बता रहे हैं कि किस तरीके से होगा। ठीक है, ओके, ये जो ITCZ जो जोन है, ये बेसिकली आपका वो जोन है जब आपके विंड्स जो हैं कन्वर्ज होते हैं। विंड्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, रिवर्सल होता है। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज अ ब्रॉड थ्रो ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। दिस कन्वर्जन जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। जैसे जैसे सन की डायरेक्शन हमें लगता है चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द रोटेशन, वैसे वैसे इन विंड्स की डायरेक्शन भी हमें चेंज होती हुई नजर आती है। ठीक है भाई, विंड्स कैसे ब्लो करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट ही तो जाती हैं। यस मैम, अर्थ का मूवमेंट आपका वेस्ट टू ईस्ट है, तो ये विंड्स का डायरेक्शन भी हमें ऐसे ही लगता है, बट बिकॉज यहाँ पे इक्वेटर के पास लो प्रेशर क्रिएट होता है, लैंड एरिया है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये विंड्स जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। यहाँ पे हमें नॉर्थ ईस्ट की लगती है, यहाँ पे हमें साउथ वेस्ट लगती है, अलग अलग। ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम, यस मैम, चलिए अब आप आ जाओ प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया, थर्ड पार्ट। वो कह रहा है मेडागास्कर कहाँ है, आपको पता है ना रिवर मेडागास्कर सी कहाँ पे है, डू यू नो? मैम इन इंडियन ओशन। नहीं, मेडागास्कर वहां पे नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम इसको इंडिया मानते हैं कि ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसको अगर हम इस तरीके से ले, ये हमारा जम्मू कश्मीर, तो ये जो यहाँ पे ये आपका रीजन क्या बताएं हम आपको, ये है आपका एरिया जिसको हम बोलते हैं मेडागास्कर है आपका किधर, मैम इन अफ्रीका। नहीं अफ्रीका में नहीं है बेटा, मैम इन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ पड़ता है मेडागास्कर, सी है ये। मैम ईस्ट अफ्रीका। जी मैम ईस्ट अफ्रीका, सदर्न पार्ट है अफ्रीका का, सदर्न पार्ट में आप समझ लो, सदर्न ईस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये मेडागास्कर है। अब ये मेडागास्कर जो है उस वहां पे हाई प्रेशर एरिया होता है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के, यहाँ पे, ये अगर मेडागास्कर इसको हम मानते हैं
देखो अगर ये मेडागास्कर है तो ये जो ईस्ट पार्ट ऑफ मेडागास्कर है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से विंड्स जो है अपने आप लो प्रेशर एरिया की तरफ डाइवर्ट होने लगती है। ठीक है, राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये जो मेडागास्कर पे जो आपका हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, इसकी वजह से जो हमारी मॉनसून विंड्स हैं वो बहुत हद, हमारा जो इंडिया का मॉनसून है वो बहुत हद तक इफेक्ट करता है। जैसे कोई भी जब फिनोमेना होता है उस फिनोमेना को जो है वो करने के लिए इफेक्ट करने के लिए देयर आर सेवरल फैक्टर्स। जैसे इंडिया में मॉनसून्स आपने सुना होगा, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो कई बार दे से कि इस बार के मॉनसून्स हल्के हैं, इस बार के मॉनसून्स बड़े अच्छे हैं। तो ये जो हल्के और अच्छे वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे पता चलता है? ये जितने भी फैक्टर्स हैं, आपका ये मेडागास्कर वाला एरिया, आपका जो सदर्न ऑक्सीलेशन है, पेरुवियन कोस्ट पे जो ओशन करंट्स ब्लो करती हैं, वो ओशन करंट्स जब आपके वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं तो उससे जो टेम्परेचर में वेरिएशन क्रिएट होता है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं इंडियन मॉनसून्स को। ऐसा नहीं है कि इंडियन मॉनसून जो है वो इंटायरली केवल जो भी कंडीशंस हमारे यहाँ पे क्रिएटेड है उसी के थ्रू जो है अफेक्टेड होता है। ये बहुत हद तक उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो फैक्टर्स इनको लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, यस मैम। भाई सीधी सी बात है, मेडागास्कर पे अगर हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड है तो क्या होगा, विंड्स अपने आप जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी और जब लो प्रेशर एरिया की तरफ डाइवर्ट होंगी तो क्या होगा भाई, क्योंकि ये सी आप देखो नीचे जो है आपका इंडियन ओशन पड़ता है, इंडियन ओशन के से जब ये वार्म एरिया है, ये वार्म विंड्स होती हैं, जब ये इंडियन ओशन के थ्रू पास होके जाएंगी तो क्या होगा, ये बहुत सारा मॉइस्चर गैदर करेंगी और मॉइस्चर गैदर करके ये जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लैंड एरिया पे हिट करती हैं तब ये खूब अच्छी बारिश करती है। Yes, ma'am. ये तो हमें पता है ना कि जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं वो ही बारिश करती हैं, उसके अलावा कोई जो है हवा बारिश नहीं करती है। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए इतना क्लियर अच्छे से? मैम जी बेटा। यस मैम। हाँ मैम जब कम बारिश होती है तो क्या रीजन होता है मैम? बेटा कम बारिश में ये होता है कि ये जो हाई प्रेशर एरियाज हैं, आपका सदर्न ऑक्सीलेशन है, पेरुवियन विंड जो है, पेरुवियन कोस्ट पे जो टेम्परेचर कंडीशंस जो डेवलप होती है बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स, और ऑस्ट्रेलिया जो है आपका वहां से जो आपका एयर ब्लो करती है इधर आपके नीचे की तरफ इंडियन ओशन की तरफ, वो जो है वो पूरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट नहीं हुआ, अगर वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन नहीं हुआ, वार्म करंट्स और जो आपका कोल्ड करंट्स के मिक्सिंग में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, प्लस जो टिबेटन प्लेट्यू का जो हीटअप हो जाता है उसकी वजह से जो एयर करंट सर्कुलेट होती है वो अगर वो जो है एक पर्टिकुलर परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो इन सब चीजों की वजह से मॉनसून हल्के पड़ जाते हैं, कम बारिश होती है। ठीक है, Okay, ma'am. Got it. गॉट इट? Yes, ma'am. चलिए अब आप आ जाओ डी फैक्टर पे। हमारा डी फैक्टर क्या है? हमारा डी फैक्टर है तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू किस तरफ पड़ता है आपको पता है ना? यस मैम। कहाँ पड़ता है बताओ? यस मैम। कहाँ पड़ता है ये? मैम टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया। हाँ, यस मैम। जब हिमालयन रीजन जो है, हिमालयन रीजन के ईस्टर्न, जैसे अगर आप नॉर्दर्न पार्ट पे खड़े हो, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयास पे खड़े हो तो हिमालयास के टुवर्ड्स द ईस्ट पड़ता है ये। ठीक है, राइट? यस मैम। ठीक है, अगर आप पेज 29 खोलोगे तो आपको तिब्बतन प्लेट्यू ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा, दिखा? यस मैम। ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है, ये जेट स्ट्रीम जो आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, ये बहुत हद तक इसको यहाँ पे एयर करंट्स को सर्कुलेट करने में ये बहुत हद तक इफेक्ट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, अपर एयर सर्कुलेशन होता है, और जो ये अपर एयर सर्कुलेशन है ये कहीं ना कहीं मॉनसून की जो विंड्स होती है उनको कन्वर्ट करने में, विंड्स को कन्वर्ज करने में बहुत हद तक हेल्प करता है, राइट? यस मैम। Okay, ma'am. This point is clear?
to Yes, everyone? Yes, ma'am. Clear. Yes, अभी ma'am. तक ये जो Clear. पॉइंट्स हमने करे इनमें कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो? क्लास? No, ma'am, I'm clear. All clear and understood? Yes, Yes, ma'am. चलिए एक बार बुशरा टिबेटन वाला एक बार और दोबारा से पढ़ दो ये वाला पार्ट. Okay, ma'am. The Tibetan plateau get intensely heated during summer, which result in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 kilometers above sea level. ठीक है, ये वर्टिकल एयर सर्कुलेशन समझ में आया. एयर करंट्स जो सर्कुलेट होती है बिकॉज ऑफ दी, फिर दोबारा जब हीट अप होता है लैंड तो क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है अपने आप विंड जो है वो डाइवर्ट होने लगती हैं. और जो एयर सर्कुलेट हो रही होती है, हमें ये बात पता है कि जो गर्म हवाएं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और जो वो स्पेस क्रिएट होती है वो ठंडी हवाओं से भर जाती हैं. ये पढ़ा है ना हमने? Yes, yes, ma'am. ये टिबेटन Yes, प्लेटो, टिबेटन Ma'am. प्लेटो. हाँ बोलो बेटा. यस मैम, जब मैम लैंड हीटअप होता है तो लैंड से एयर चली जाती है साउथ वेस्ट की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट से. राइट, ये क्लियर हो गया तिब्बतन प्लेट्यू वाला पार्ट. यस मैम, क्लियर. Yes, ma'am, clear. अब आप आ जाओ. The movement of the westerly jet stream to the north of the Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer season. अब ये जो हमने पीछे मैप देखा है, जून में आप देखो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये बह रही हैं ऊपर की तरफ, बट वहां पे ऑलरेडी हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी अवेलेबल है, वहां पे वो भी घूम रही है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी विंड्स होती हैं उनका डाइवर्जन हो जाता है. आप ये देख रहे हो अगर इक्वेटर से, ओपन पेज 29 फिगर 4.3 क्लास. Ma'am, open. ओपन. मैम ये ऑलरेडी देखो, ओपन. हाँ ये जो हमारी विंड्स है ये आपको 3 छोटे छोटे एरोज दिख रहे हैं, सरफेस विंड्स जो हमारी ब्लो कर रही हैं. यस Yes, मैम. ma'am. ये जो I'm from सरफेस विंड्स है, Kerala. हाँ ये अपने आप इनकी जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज हो जाती है. ये देखो एकदम कन्वर्ट हो गई है. हमें ऐसा लगता है जैसे कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई. वो ITCZ वाला जो एरिया है वो यही एरिया है और यहीं पे अपने आप जो है कन्वर्जन हो जाती है विंड्स में, जो कि आपके इंडियन ओशन, आपके पैसिफिक ओशन से जो आ रही है. ठीक है. Yes, ma'am. यस मैम. जनवरी में तो मैम होती नहीं है. बेटा जनवरी में क्या होता है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपका ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं. दोबारा वही मेडागास्कर वगैरह की तरफ से जो दिक्कतें आती हैं, जो आपका चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान वगैरह का जो एरिया है वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं. और वहां से क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर, वहां पे आपका लो प्रेशर एरिया होता है, तो वो अपने आप जो है, सॉरी हाई प्रेशर एरिया होता है, तो वहां से अपने आप जो है लो प्रेशर की तरफ ये विंड जो है डाइवर्ट हो जाती है पानी की तरफ जो है आपका, क्योंकि लैंड में लो प्रेशर होता है और आपका जो समुद्र होता है, जो पानी होता है, वहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड होता है. तो अपने आप जो विंड्स है वो उसके कोस्टल एरियाज की तरफ जाती है. और आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर की तरफ जो है ये साइक्लोन्स वगैरह बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं. यस मैम. है ना. तो ये साइक्लोन्स इसी वजह से आते हैं, आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से. ठीक है. ओके मैम. हाँ जी, चलिए इतना क्लियर हो गया. ये ई पार्ट्स सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. मैकेनिज्म किस तरीके से इफेक्ट करता है ये. यस मैम. Yes, ma'am. नाउ अपार्ट फ्रॉम मैम दिस, मेरी अभी एक मिनट रुको बेटा, ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये वाला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आई वांटेड टू शो यू अ वीडियो. डू वी हैव टाइम फॉर द वीडियो? मैम Ma'am, वी हैव 4 ओनली minutes. 3 minutes लेफ्ट. यस. तो फिर एक काम करते हैं, हम रीडिंग कर लेते हैं ऑनसेट ऑफ द मॉनसून्स की. और कल जो हमारा कल क्लास है, आई थिंक कल लास्ट पीरियड है हमारा, तो है ना, उसमें हम ये वीडियो देखेंगे. मुझे याद दिला दीजिएगा कि मैम एक वीडियो आपको दिखाना था. ठीक है. ओके मैम. Okay, ma'am. तो चलो, कैन वी हैव वंशराज रीडिंग? Yes, ma'am. चलिए वंश. The onset of the monsoon and withdrawal. The monsoon, unlike the tidal, are not steady winds but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas.
The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid-September. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for 7 days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. Subsequently, it proceeds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on approximately the 10th of June. This is a fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch is also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. The lofty mountains causes the monsoon winds to defect towards the west over the Ganga plain. By mid, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch, and the center part of the country. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of the Ganga plains. Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of June. By the first week of July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and eastern Rajasthan experiences the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country. Withdrawal or the retreat of the monsoon is more gradual process. The withdrawal of the monsoon begins in northwestern states of India by early September. By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. The islands receive the very first monsoon showers progressively from south to north. From the last week of April to the first week of May, the withdrawal takes place progressively from north to south from the first week of December to the first week of January. By this time, the rest of the country is already under the influence of the winter season. विंटर मॉनसून Mm, Yes, ma'am. ठीक है, चलो चलो एक मिनट, बस इतना इतना ही हो जाओ। ये हम करेंगे कल, इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब। और टुमारो रिमाइंड मी, आई हैव टू शो यू वन वीडियो, उससे आपको ये जो सदर्न ऑक्सीलेशन और जो एल नीनो इफेक्ट है बहुत क्लियर हो जाएगा। एक बहुत अच्छा एनिमेशन है, उस एनिमेशन के थ्रू समझाया गया है किस तरीके से जब पेरुवियन कोस्ट से पे जब वार्म और कोल्ड करंट्स मीट करती हैं तो जो आपका कोल्ड करंट है कैसे जब वो आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहता है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है उस टाइम पे क्रिसमस का टाइम चल रहा है। क्रिसमस का टाइम वहां पे क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स होते हैं उस टाइम पे, राइट? तो यस मैम। तो वो किस तरीके से जब ये कोल्ड करंट्स वहां जाके मीट करती हैं तो किस तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। और कई बार क्या होता है, ये नहीं जो है अच्छे से जा पाती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन वेदर कंडीशंस और जो आपके जो नियर बाय जो एरियाज हैं जिसकी वजह से जो लो प्रेशर हाई प्रेशर एरियाज क्रिएट होते हैं उसकी वजह से भी। ठीक है, एनी मिनट द मीटिंग इज गोइंग टू एंड। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, राइट? थैंक यू मैम। चलिए, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. see you all tomorrow. Bye बेटा, गुड डे बच्चा, गुड डे। Bye, ma'am. ओके बच्चा, थैंक यू मैम। ओके बेटा, Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय मैम। बाय, Thank you, ma'am. ओके बेटा।